Yes, let us continue the concepts in mechanical properties of solids. तो इस चैप्टर के अंदर हम लास्ट टाइम स्ट्रेन एनर्जी डिस्कस कर रहे थे. Okay. So this is what we are going to discuss, right? Okay. तो अभी देखो इसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो स्ट्रेन एनर्जी है तो या वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर can be found out by using the formula that is 4 half into force into extension, no doubt. So this is the formula for the work done, or we can say the strain energy stored in the stretched wire, because whenever the wire is stretched, suppose ये wire है और इसको अगर हम सपोज एक लोड अटैच करते हैं और उसकी वजह से उसका जो लेंथ है वो अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो वो स्ट्रेच हो गया. तो इस स्ट्रेच करने की प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा जरूर. Whatever work is done in this process will get stored in the wire in the form of potential energy, and that potential energy is actually called as strain energy, and this strain energy is actually denoted by U, and this U is given by this formula, that is half of force into extension. Remember. सो और ये जो फॉर्मूला है तो स्ट्रेन एनर्जी का, तो इसको हमने और अलग दो और फॉर्म में लिखा था, बराबर. ये एक फॉर्म और ये एक उसका फॉर्म है. इन दोनों फॉर्मूले से हमको ये पता चलता है कि स्ट्रेन एनर्जी जो है तो U इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, एंड एट द सेम टाइम दिस U इज प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर. तो देखो एक्चुअली अगर U और L का रिलेशनशिप अगर हमको देखना है तो U is actually directly proportional to L square. This is the correct thing we can say. Not that from this equation we can conclude that U is proportional to L. नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि L के ऊपर फोर्स भी तो डिपेंड करता है कि नहीं. फोर्स के फॉर्मूला के अंदर ही ऑलरेडी L है, स्मॉल l है. ये देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है कि नहीं, इस फॉर्मूला के अंदर ही स्मॉल l है. इससे हमको पता चलता है कि फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्मॉल l. And since this force is present here in this formula and small l is also there, so we can see that this actually U depends actually on the square of this L, because it depends on the product of the force and extension. So and force itself depends on extension directly, and that's why indirectly we can say that the work done in stretching the wire or the potential energy stored in the wire depends on extension square, not on simply extension only. Yes, remember. तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. एंड फोर्स का भी सेम वैसा ही है. तो फोर्स जो है तो सिंपली U इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ये कहना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंशन जो है तो एक एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला है तो वो अगर हम इस तरह से देखेंगे यहाँ पे तो पता चलेगा कि एक्सटेंशन के फॉर्मूला के अंदर ऑलरेडी फोर्स है. तो इसलिए फिर यहाँ पे extension actually depends on this force directly, and that's why we will have to keep in that in mind, and then we can be able to say that actually this potential energy or the strain energy depends on F square, not simply F. Yes, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. Apart from that we have the formula for getting the strain energy per unit volume. ओके इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं. देखो ठीक से, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि नॉर्मल डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी द एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, रिमेंबर. एंड एज वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द वायर इज
nothing but this much here, and the volume of the wire can be obtained by multiplying the area with the original length of the wire. So we can get this energy divided by volume, and if we just simplify this further, then we get this F upon A to be equal to the stress, and the small l upon capital L becomes actually the equal to the strain, and that's why we can get this formula between the strain energy per unit volume. See the difference between this small u here and capital U here. What is the difference between small u and capital U? So this capital U is nothing but the strain energy, simply strain energy we can call it as. Okay, so इस capital U को हम बोलेंगे strain energy. But what is this small u called? It is called as the energy density. Remember, energy density, or we can call it as the strain energy per unit volume, which can be short termed as strain energy per unit volume. ओके, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूरा जो है उसका मतलब स्मॉल यू होता है, और दिस स्मॉल यू इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, y होता है, बराबर. तो अगर हमको पता है ऑलरेडी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू y, तो इस केस में फिर स्ट्रेस को कैसे लिख सकते हैं? Can't we write this stress as y into strain, right? So if we use it here, then we get this stress replaced by y into strain, but strain is already there, so we can get this as strain square, and hence we can get this simplified as the strain energy per unit volume is expressed as half of y into strain square. Okay, ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखो ठीक से. And similarly, the strain energy per unit volume can also be expressed as, क्योंकि अगर यहाँ पे strain का अगर वैल्यू हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? strain can be expressed as stress upon y, करेक्ट है? तो दिस इज stress upon y, ये एक तरफ से strain का वैल्यू है. तो अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, तो क्या मिलेगा? देखो, तो हमको मिल जाएगा the strain energy per unit volume is equal to half into stress, already stress है यहाँ पे, and this strain is to be replaced by stress upon y, correct है? And since this stress upon y is replaced here, so we can get this strain energy per unit volume finally to be simply stress square. Okay, stress into stress becomes stress square upon 2y. So this is actually the another equation for the strain energy per unit volume. देखो, ये एक equation मिल गया हमको, that is half into y into strain square. दूसरा ये u is equal to say stress square upon 2y, और तीसरा ये ओरिजिनल जो हमारे पास ऑलरेडी है, that is half into stress into strain. Okay, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, that is the graphical representation of the strain energy and the strain energy per unit volume. Okay, तो देखो यहाँ पे अभी सपोज अभी हमने एक ग्राफ अगर ड्रॉ किया, ठीक है, फोर्स उसमें y एक्सिस पे डाल दिया, ओके, और एक्सटेंशन जो है तो वो अगर हमने x एक्सिस पे डाल दिया, तो हमको ये पता है ऑलरेडी कि द ग्राफ बिटवीन दिस फोर्स एंड एक्सटेंशन कम्स टू बी अ straight line passing through origin, no doubt. And already we have seen that the slope of this graph, okay, slope of this graph happens to be the constant of proportionality between force and extension, which is, we already know, it is force equal to क्या होता है, y a into small l upon capital L हुआ करता है कि नहीं? तो अभी इसमें अगर हमने ये अगर कॉन्सेंट्रेट किया ठीक से, तो फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप क्या बनेगा? तो हम ये बोल सकते हैं y a upon l, no doubt. This is nothing but the slope of this graph, correct है? चलो ठीक है, but one more thing to understand here is that, see, if this is the graph between force and extension, then the area under this graph, okay, ये जो अगर सपोज यहाँ पे हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, ठीक है, तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये एरिया, you can shade it, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया बनता है, so this area here will actually be the
Okay, this area of this shaded portion will be actually the force into means work done. वर्क डन कहो या स्ट्रेन एनर्जी कहो, उसको एक ही बात है, क्योंकि देखो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन बन रहा है ना, वो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो अभी देखो अगर ये पूरा जो ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है, एक्सटेंशन के बराबर है, करेक्ट है। और हाइट कितना है उसका, तो ये जो हाइट है वो तो एक्चुअली वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब फोर्स है कि नहीं, तो इसलिए ये जो हाइट है तो वो फोर्स बन गया, करेक्ट है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज गोइंग टू बी द हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, करेक्ट है। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बनता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो हाफ इंटू बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस है एल, स्मॉल एल, करेक्ट है। एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विद द हाइट which is going to be this capital F here. So we can just get this capital F and just prove that this formula for the strain energy and this formula for area of a triangle is going to be the same. That means the area of triangle or area under the curve between force and extension always happens to be the strain energy. तो उसको हम बोल सकते हैं strain energy, or we can just denote it by U, and this is also equal to the work done, remember. Okay, तो ये बात याद रखो ठीक से, the strain energy of a wire is given by this formula. Okay, and even work done also, work done in the stretching the wire from 0 to L is going to be obtained by this using this formula here, no doubt. Okay, अभी इसका एक और एस्पेक्ट हमको देखना है, ठीक है। देखो इसमें ठीक से ओके, अभी देखो सपोज एक ग्राफ है फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में, ठीक है। ये फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वी नो दैट इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, नो डाउट। ओके, अभी इसमें से देखो, अभी सपोज अगर हमको वर्क डन निकालना है, वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम L1 टू L2। ओके, देखो ठीक से L1 से लेके L2 तक वायर को स्ट्रेच करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वो सपोज हमको निकालना है। हाउ विल यू फाइंड आउट दैट, उसके लिए देखो ठीक से, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम L1 टू L2। L1 ऑलरेडी उसका लेंथ बना हुआ है, ऑलरेडी उसका जो उसको हमने L1 लेंथ तक खींचा हुआ है, और उसको फिर अभी L2 तक खींचने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो दैट वर्क डन विल एक्चुअली बी द डिफरेंस ऑफ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू F इंटू हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ये फॉर्मूला पूरा 0 से L तक एक्सटेंड करने के लिए है, नो डाउट। और यही फॉर्मूला हम मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। बट जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी, फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला वाई ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, करेक्ट है। जिससे हमको वर्क डन का और एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा जो अभी अभी हमने लिखा था, तो वाई ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, करेक्ट है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 0 टू एल। ओके, बट अभी अगर ये फॉर्मूला हमने यूज किया, अगर सपोज कोई वायर हमारे पास है, मान लो कि ये देखो ये वायर है सपोज, ठीक है। तो suppose this is the wire and suppose we stretch it by a small length L1 suppose, तो L1 तक हमने उसको स्ट्रेच किया, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ वर्क डन हो गया, उसको हम बोल देंगे W1, चलेगा। एंड सपोज दैट फर्दर वी स्ट्रेच इट थ्रू L2, अभी यहां से इसी वायर को, देखो ठीक से सेम वायर है जो अभी L1 से ऑलरेडी स्ट्रेच किया हुआ है, नहीं सॉरी, सपोज ये वायर है और इसको स्टार्टिंग से अगर हमने L2 इतने लेंथ से स्ट्रेच किया, L2 इतने लेंथ तक स्ट्रेच किया, तो उस प्रोसेस में जो वर्क डन किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे W2 है। तो अभी देखो W2 इतना वर्क डन जो कर रहे हैं हम,
तो L2 इतने लेंथ से स्ट्रेच करने के लिए जितना भी वर्क डन करना किया जा रहा है W2, उसमें से अगर हमने ये W1 मतलब L1 इतने लेंथ से स्ट्रेच करने के लिए करना पड़ने वाला जो वर्क डन है, वो अगर हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उससे हमको जो मिलेगा दैट विल बी द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम दिस L1 टू L2 ओनली। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वो इन दोनों वर्क डन का डिफरेंस के बराबर होगा। बिल्कुल, इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि W इज एक्चुअली इक्वल टू W2 माइनस W1, करेक्ट है। एंड हेंस दिस W विल एक्चुअली बी इक्वल टू W2। अभी W2 कैसे मिलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 0 टू L2? ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है, जिसमें L के बदले L2 डाला जाएगा, जिससे हमको मिलेगा हाफ ऑफ y a L2 स्क्वायर अपॉन L, करेक्ट है, माइनस हियर इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ, अभी यहाँ पे इधर ही L के बदले हमको L1 डाल के हमको W1 मिलने वाला है, जो बन रहा है हाफ ऑफ y a L1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल L, करेक्ट है। And then we can just get this half y a upon L common, and what we are left inside is L2 square minus L1 square. That's it. So this is actually the formula for finding the work done in stretching the wire from L1 to L2. Remember, तो किसी भी वायर को अगर हम L1 से L2 तक अगर खींचते हैं, तो उस प्रोसेस में किया जाने वाला जो वर्क डन है, तो वो हमको इस वाले फॉर्मूला से निकालना होगा। याद रखो ठीक से ये फॉर्मूला, ठीक है ना। एंड इन द ग्राफ, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इट ग्राफिकली, तो ग्राफिकली कैसे हम ढूंढेंगे उसको? तो देखो L1 के करस्पॉन्डिंग ये जो है, ये बनेगा यहाँ पे, और L2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो ये वाला बनेगा इधर, ठीक है। अभी इस ग्राफ के लेफ्ट साइड का जो रीजन है, समझ सकते हो ठीक से। इफ यू सी द रीजन एट द लेफ्ट ऑफ दिस ग्राफ, तो यहाँ पे इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में, मतलब L1 के लेफ्ट साइड में जो रीजन है, ये जो पूरा अगर हम शेड करेंगे ठीक से, तो व्हाट डज दिस रीजन गिव्स अस आइडिया अबाउट? ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज दिस एरिया गिव्स अस? इट गिव्स अस W1। डू यू एग्री विद दिस? देखो ये जो रीजन का एरिया बनता है, वो एक्चुअली W1 के बराबर रहने वाला है। This will be W1, no doubt. And if we see carefully the area of this graph at the left of this L2 here, तो L2 के लेफ्ट साइड में जो रीजन बनता है, उसका जो एरिया है, तो वो अगर हम सपोज शेड करेंगे, देखो इधर, देखो ठीक से यहाँ पे इस L2 के लेफ्ट साइड में जितना भी जो ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा, वो एरिया हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो दैट विल गिव अस W2 हियर, ओके। ये W2 रहने वाला है, बिल्कुल करेक्ट। तो अभी यहाँ पे ये W2 मिल गया, तो यहाँ से पूरा जो एरिया है, मतलब ये देखो ठीक से, ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली W2, ओके। बट दिस ट्रायंगल, ये जो इनर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, तो वो रहने वाला है W1। एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस एरिया हियर, इस रीजन का जो एरिया है, तो वो मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जरूर W2 माइनस W1 करना पड़ेगा, बिल्कुल। That is we have to do here. So that's why we have to do that W2 minus W1. We can do it in two ways. अब यहाँ पे अगर हमको ये जो करस्पॉन्डिंग L1 के करस्पॉन्डिंग वाला जो फोर्स है, तो वो अगर दिया हुआ है F1 सपोज, ठीक है, और L2 का करस्पॉन्डिंग फोर्स अगर दिया हुआ है F2 सपोज, ठीक है, तो ऐसे केस में ये एरिया जो है, कौन सा समझा ठीक से? ये जो एरिया है शेडेड पोर्शन का, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट शेडेड एक्चुअली।
यस, अभी ये वाला जो एरिया है तो वो निकालने के लिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम, राइट? सो डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द वर्क डन, राइट? सो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, या तो ठीक से, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ए और बी बोलेंगे उनको, इनटू हाइट। अभी ट्रेपेजियम कैसे होता है पता है तुमको? ट्रेपेजियम हैज टू साइड्स पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। सो पैरेलल साइड्स जो भी है उनको हम बोलेंगे ए एंड बी, चलेगा? और उसका जो हाइट होता है तो उसको बोलते हैं एच। तो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ अ सच अ ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए उसके लिए क्या आएगा हमारे पास तो यहाँ पे आएगा हाफ इनटू, अभी पैरेलल साइड्स कौन से है बताओ इस पर ट्रेपेजियम के? ये देखो, these sides are vertical sides are going to be parallel to each other, right? This is F1 and this is F2, correct है? So these are the parallel sides, and if we just put them here then we get this F1 plus F2 as a sum of parallel sides, right? And that is to be multiplied with H. H मतलब क्या है यहाँ पे? Height, which is going to be this here. तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये टोटल डिस्टेंस जो L2, उसमें से अगर ये L1 माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हमको मिलने वाला है। तो इसलिए L2 माइनस L1 विल बी दैट हाइट एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पे F1 प्लस F2 और यहाँ पे ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? L2 माइनस L1, दैट्स इट। So this will be also the formula for finding the work done in case when the wire is stretched from L1 to L2। एंड तीसरी बात अभी देखो, ठीक से तीसरा फॉर्मूला हमको अभी बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो ठीक से, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द बिगर ट्रायंगल हियर, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ये देखो ये पूरा ट्रायंगल, उसमें से अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल के सबट्रैक्ट कर देंगे तो उससे भी हमको वही मिलने वाला है, उसी शेप का एरिया, इस शेडेड पोर्शन का एरिया ही मिलने वाला है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम अभी कौन सा टेक्निक यूज करेंगे? सिंपली द एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल विच इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ force into half of base into height, correct है? Can you tell me what should be the base of that triangle? It's going to be L2, and area height of the triangle is F2, so we can say this will be half of F2 into L2 minus half of, here it is the triangle area, ये वाला जो triangle है उसका एरिया कैसे मिलेगा हमको? उसका बेस है L1 और उसका हाइट है F1, so it will be actually half of F1 into L1, correct है? So this is half of F1 into L1, and if we just take half common from these two brackets, then we are left with F2 L2 minus F1 L1. This is again another formula for finding this same thing, that is the work done in stretching the wire from L1 to L2, ओके? तो देखो ये तीसरा फॉर्मूला है। अभी ये देखो तीन फॉर्मूले हमको मिल गए, ये एक पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इट डिपेंड्स कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, क्या दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? अगर F1 F2 L1 L2 सब दिए हैं तो दिस विल आल्सो बी बेटर एंड दिस विल आल्सो बी बेटर। एंड अगर सपोज सिर्फ L1 L2 दिया हुआ है तो, एंड यंग्स मॉडुलस लेंथ, ओरिजिनल लेंथ वगैरह दिया हुआ है, तो दिस विल एक्चुअली बी बेटर दिस वे। एंड अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ से तो बिल्कुल डायरेक्ट हमको मिल सकता है, वो सीधा एरिया निकालो एंड विल गेट द फाइनल रिजल्ट, दैट इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम L1 to L2. No doubt, this is also the formula for work done in stretching the wire from L1 to L2. At the same time, it is also the formula for finding the change in strain energy. Okay, when the wire is stretched from L1 to L2. तो जब वायर L1 से L2 तक स्ट्रेच किया जाता है तो उस प्रोसेस में स्ट्रेन एनर्जी में कितना चेंज होता है, तो वो निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला हमको यूज करना है।
ठीक है, ये पूरा समझ में आया ठीक से? कीप दिस इन माइंड। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द thermal stress and thermal strain. Now, what do you mean by this thermal stress and thermal strain? तो देखो ठीक से, क्या होता है, कोई भी रॉड, अगर सपोज हमारे पास एक मेटल का रॉड है, ये देखो, ये सपोज एक मेटल का रॉड है, ठीक है, इसको जैसे ही हम हीट करना चालू करते हैं, सपोज वी स्टार्ट हीटिंग इट, जैसे इसको हमने हीट दिया देना चालू किया, तो हीट देने से क्या होगा कि उसका जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा. If suppose its original length is considered as L naught, then after heating, if its temperature increases by T, then its length will just slightly get increased like this. तो इसका जो length है वो थोड़ा increase हो जाएगा, और उसका जो length है finally इस तरह से थोड़ा increase होके इधर तक बन जाएगा. This is the change in its length. We can see clearly. Suppose that LT is going to be its final length. ओके, उसका फाइनल लेंथ कितना है, LT है, जो कि T टेम्परेचर पे बनता है, और वो बढ़ता ही जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है. It is observed that whenever the temperature is increased, the length also goes on increasing, and the change in length, मतलब LT minus L naught, this is called as the change in length. It is found to be directly proportional to the change in temperature, no doubt. But at the same time, this change in length is also found to be directly proportional to the original length at 0 degree Celsius, which is L naught kept here. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि L naught के साथ भी वो प्रोपोर्शन में है, और चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी वो प्रोपोर्शन में होता है, जिसका कंबाइन करके, जिसको दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि LT minus L naught is actually proportional to the product of these two, that is L naught and T, करेक्ट है? सो L naught और T के साथ वो प्रोपोर्शन में होगा, प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शन में होगा, जिसको नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी हटा के अगर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो वो बन जाएगा अल्फा. दिस अल्फा इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद L naught into T kept as it is. And now we can just discuss here that if we take this L naught, and one more thing here is that this alpha is called as the temperature coefficient of thermal expansion. Remember, it is also called as the temperature coefficient of thermal expansion. It is the characteristic property of that material. So whenever the some substance is heated through some temperature, तो किसी न किसी टेम्परेचर पे अगर इसको हमने हीट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल जस्ट अंडरगो एक्सपांशन लाइक दिस, तो उसका एक्सपांशन हो जाएगा, और ये एक्सपांशन जो है वो थर्मल एक्सपांशन कहलाता है. ये हमको एक्चुअली हीट सेक्शन में स्टडी करना ही है आगे चल के, बट चलो अभी यहाँ पे ये रिलेशन है, मतलब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है. चलो ठीक है, तो अल्फा इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, व्हिच गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ मच द मटेरियल इज able to expand, the ability of the material to expand when temperature is increased or when it is heated up. Okay, तो ये हमको पता चलता है. तो अभी इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, LT minus L naught upon L naught. क्या किया हमने, इस L naught को नीचे लेके गए वो साइड में, करेक्ट है, जिससे यहाँ पे हमको मिलेगा LT minus L naught upon L naught is going to be actually alpha into T, where alpha is going to be the temperature coefficient of thermal expansion, which is the constant of that material, and this T is actually going to be the temperature, change in temperature. Okay, तो अभी यहाँ पे देखते हो कि LT minus L naught can also be denoted by delta L, that is a change in length, and L naught itself is denoted by L itself. So L मतलब original length, so this will actually be equal to alpha into T. And if we just check this concept here, तो ये delta L upon L का मतलब क्या हुआ, delta L मतलब change in length upon original length, it is called as a strain. Already we have seen it as a strain. हमने इस properties of solids के अंदर सबसे starting में ही देखा कि the change in length upon original length is called as the strain. But only the difference is here that this strain is not produced just by stretching. इस रॉड को हमने खींचा था क्या, नहीं, खींचने की वजह से ये strain produce नहीं हुआ है,
बल्कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेन है वो थर्मल मतलब हीटिंग, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज द थर्मल स्ट्रेन। रिमेंबर, this is called as thermal strain, and this thermal strain is simply given by the formula alpha into T, where alpha stands for the change in alpha stands for the temperature coefficient of thermal expansion, and this T is called as the change in temperature simply. And since we have this thermal strain, we can find out the thermal stress also, because we know that the thermal stress upon thermal strain, ये रेशियो क्या बनेगा बताओ, what can we say? What is the ratio of thermal stress to the thermal strain? This ratio will actually be the Young's modulus, correct? Hai? That is Y. So if we take this thermal strain in that side, it will get multiplied with this. So we can be able to express this thermal stress. So thermal stress equal to क्या बनेगा actually? Young's modulus Y into thermal strain, correct है? तो इस तरह से हमको ये मिलता है thermal stress. But already we have seen that this thermal strain, okay. But already we have seen that this thermal strain is nothing but alpha into T, right? So we can write this thermal stress to be simply equal to Y into alpha T, correct? Hai? So this is actually going to be the formula for thermal stress, remember. And अभी इससे भी आगे जाके ये तुम सबको पता है ऑलरेडी कि स्ट्रेस चाहे वो कोई भी हो, थर्मल स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, it is always equal to the ratio of the force to area, करेक्ट है? तो अगर हम इस स्ट्रेस को एक्सप्रेस करते हैं फोर्स अपॉन एरिया इस तरह से, तो चलो ये थर्मल स्ट्रेस तो है नो डाउट, बट स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन एरिया इज एक्चुअली गोइंग टू बी y alpha t, करेक्ट है? If we just take this area in that side, it will get multiplied and we'll be left with the force alone on the right side, left side here. So force exerted will actually be equal to area into y into alpha t. So this is actually the force exerted due to the heating. For example, if we have a rod, अगर हमारे पास एक मेटल का बना हुआ रॉड है और उस रॉड को अगर हमने दो क्लैंप्स या दो वॉल्स के बीच में फिट करके रखा है, सपोज ये हमारे पास रॉड है, ओके ये रॉड है और इस रॉड को हमने दो क्लैंप्स मतलब दो वॉल्स के बीच में फिट करके रखा है. मान लो ये फर्स्ट वॉल इधर से है इस तरफ और यहाँ पे दूसरा वॉल है इस तरफ, ठीक है? these are the two walls and this rod is just clamped or fitted between these two walls like this here. ये वॉल्स है, रिजिड सपोर्ट से मतलब ये दिस रॉड कैनॉट एक्सपांड इवन इफ वी स्टार्ट हीटिंग इट. तो अगर सपोज हमने यहाँ पे हीटिंग चालू किया, सपोज यहाँ पे हमने इस रॉड को हीट करना स्टार्ट किया, okay, as we start heating this rod, what will happen is its temperature will increase, no doubt. उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चालू होगा बिल्कुल, लेकिन वो एक्सपांड नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्स खड़े हैं, ये वॉल्स जो है वो उसको एक्सपांड होने नहीं देंगे और उसके अटेम्प्ट में इट विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस वॉल्स इन बोथ द डायरेक्शंस, करेक्ट है? ये वॉल्स को वो इस तरफ प्रेस करेगा, ठीक है, बाहर के डायरेक्शन में प्रेस करेगा. That force exerted by this rod will be given by this formula here. ये formula जो है वो वही force निकालने के लिए है. That force will actually depend on area of cross section of this rod. इस rod का जो cross sectional area है तो वो suppose A है इस तरह से, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. Young's modulus of the rod will also matter.
ठीक है, यंग्स मॉडुलस अगर उस रॉड का y है तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा, अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा और चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। बिल्कुल, तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब जितना टेम्परेचर हम ज्यादा एक्सर्ट राइज करेंगे तो उतना वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। On the other hand, if you do the same experiment and suppose we cool down the rod, अगर इस रॉड को हम कूल डाउन करते हैं, मान लो कि इस रॉड को अभी हम आइस के टुकड़ों के आसपास रखते हैं, समझो यहाँ पे हमने कुछ आइस के टुकड़े रख दिए इस रॉड के आसपास, ये आइस है सपोज, जिसकी वजह से उसको उसको कूल किया जा रहा है। ठीक है, ये आइस के टुकड़े हैं जिसकी वजह से ये रॉड जो है वो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। सो एज दिस टेम्परेचर ऑफ दिस रॉड विल गो ऑन डिक्रीजिंग, temperature goes on decreasing, so what will happen is this rod will just try to contract, and now this time the rod will just exert this force in this direction here in order to contract, right? तो contract होने के लिए वो इस तरफ force exert करेगा और इन walls को खींचेगा। अगर हमने उसको पैक करके रखा है तो अगर उसको हमने छोड़ा नहीं, उसको अगर contract होने के लिए allow नहीं किया तो same amount of force will be acted upon by the rod on the walls in the opposite direction, that means in this inward direction. So this type of force will be exerted by the rod. This is called as the thermal thrust exerted by the rod on the walls. Remember, तो ये concept है. This is called as a thermal stress and thermal strain. Remember, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, थर्मल स्ट्रेस का ये वाला है, और थर्मल फोर्स दिस इज हियर। एंड इवन इससे भी आगे जाके इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सच अ रॉड, ओके, द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों कौन से टाइप के होंगे, थर्मल होंगे, थर्मल। और जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला थर्मल स्ट्रेस के लिए बनता है। So just put it here and get it as y alpha t. Okay, thermal stress के बदले उसको हमने डाल दिया। And what is the formula for thermal strain? See it here. It is alpha into t here. So if we just replace it here, then we get this alpha into t. So that this small u, that is the strain energy per unit volume in such a case, can be obtained to be simply half of y into alpha square into t square. तो ये भी एक फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रख लो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, और वी कैन कॉल इट एज अ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ द रॉड इज हीटेड अप और कूल्ड डाउन। ओके, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है या स्ट्रेन पैदा होता है उसको थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन कहा जाता है, और वो चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और इससे भी आगे जाके उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जरूर। ओके, चलो ठीक है। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑल टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द एमसीक्यूज। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको एक फाइल शेयर किया है जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एमसीक्यूज है। आई होप आप सभी को वो मिला होगा, ठीक है नहीं? अगर नहीं मिला है तो बताओ, आई कैन शेयर इट अगेन। बट वो एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट लेवल 1 के जो एमसीक्यूज है वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके रखो खुद से, so that you can continue with the doubts only in the next lecture. And जो मुझे लगते हैं कि जो आपको नहीं आएंगे तो वो भी मैं करके दूंगा तो मेरे लेक्चर में। चलो ठीक है, so let us stop lecture here. Thank you all of you.